students, how are you? I think everybody is fine and safe at home and studying well. So, as you know that your school may reopen and you may come to school again to study. Okay, so we are still waiting for you to come to school. But as you know that studies should go on. So, we are still with the video online classes. This is your again a next video for your next chapter of your moral science, that is hi there, you are important. Somebody is saying to someone, the title is telling you about that somebody is saying something to somebody special. Before the two chapters you have learned about the life, what is the importance of your life, what is the main vision of your life, what is the main purpose of your life, why God has sent you. All these things we have learned, and why we should be very capable and lovable for everyone. All these things we have learned in our last two chapters, that is who is God and I'm lovable and capable. These two chapters we have learned about our lives. Now in this chapter we will learn about the importance of the people who are there in our life. What things we can do when we are with them, when we think about them, when they think about us. Family means sacrifices. Family means happiness. Family means togetherness. Everything. फैमिली के साथ जब हम रहते हैं तो हम अपने आप को सिक्योर समझते हैं. फैमिली के साथ हम खुशियाँ बांटते हैं. फैमिली एक ऐसी जगह है जहाँ हम हर तरह का एनवायरनमेंट फेस करते हैं, चाहे वो दुख हो चाहे वो सुख हो. एवरीथिंग वी इंजॉय विद देम, we distribute our sadness to each other. Means if we express our feelings in front of our near ones, then they understand our feelings. So in a family always support us when we are in any very difficult situation. When we are in very difficult situation, family is there to support us. Family is the one place where we can feel that yes, here we can get our solution. Yes, there are many people you can see in your life, they can help you. But a family is one place where you can see everything, where you can feel everything, you can express your feeling to everyone. So here is a story about two persons, Della and Jimmy, the husband wife, and they are very poor, and Christmas is there, and both want to give a beautiful gift to each other, a precious gift to each other, but they have no money to buy that gift. Money is not everything for life. Yes, money is not everything for life. You can't buy everything from money. You can't buy happiness. You can't buy love. You can't buy relations. All these things you can't buy. These are the precious things in your life which we can't buy. And in this, we will learn all these things, that why all these things are precious to us. So we are starting with a story that Della and Jimmy, a husband-wife, wants to give a beautiful gift to each other, but they doesn't have money. Della is continuously saving the money by bargaining from the bargaining from the groceries, from the vendors, all these places she is going, and when she is buying the thing, she is bargaining for that and saving some monies from there. But it was not enough for that what she wants to buy. She wants to buy a platinum wrist for the watch which Jimmy is having. And Jimmy's tie was broken and it was unable to wear. So Della wants that wrist to
platinum wrist to buy for him. And another side, Jimmy also wants to buy something special for his beautiful wife. But both are thinking about that they doesn't have enough money to buy the gift. Now, in a conversation, Jimmy is telling to Della that tomorrow is Christmas and he wants to give him a beautiful gift, but he doesn't have any money. Then Della says that everything we can't buy from money, your love is enough for us. That Jimmy also tells to Della that that Jimmy tells Della that your love is everything for him. Gift is not very important. If she is always with him, हमेशा उसके साथ रहेगी, तो वही बहुत बड़ी बात हो जाती है जिमी के लिए. डेला अगर उसके साथ हमेशा रहे, गिफ्ट तो सबको ही देता है, लेकिन अगर कोई हमेशा उसके साथ रहे, उसके सुख दुख में साथ रखे, तो वो बहुत से बड़ी गिफ्ट होती है. तो जिमी यही सोचता है, यही बोलता है उसको. बट दोनों यही सोचते हैं कि कल क्रिसमस है तो कल कुछ स्पेशल होना चाहिए. यही सोच के जिमी घर के बाहर निकल जाता है और डेला वहीं रहती है अकेले रूम में, सोचते हुए कि ऐसा क्या करे वो, व्हाट शी कैन डू दैट शी कैन बाय दैट प्लैटिनम रिस्ट एंड कैन शी कैन गिफ्ट दैट टू जिमी. Jimmy also, when he was walking alone in the road, he was also thinking about the same thing that ऐसा क्या करे वो कि उसको वो गिफ्ट उसको मिले डेला को देने के लिए. तो यही सोचते सोचते जब डेला ये सोच रही थी, तो डेला जस्ट अपने बालों पे ऐसे हाथ फेर रही थी, तो उसको याद आया कि उसके बहुत सुंदर लंबे बाल हैं, गोल्डन हेयर है उसका, बहुत लंबा गोल्डन घना बाल है उसका. And then an idea came to her mind that why can't she has a haircut and she can sell that hair and she can get the money from there and she can buy that platinum wrist. Then she went to the salon and she get a haircut and she sell that hair and she get the money. In the other side, Jimmy was walking alone in the road and was thinking about all these things, that what he can do a special, and he remember that Della has a long hair, golden hair, and in that a beautiful Torqueuse, he can give a Torqueuse comb to her so that she can put it in her golden hair. Then he was thinking about that, and then suddenly he went to he saw that he has that broken watch. Then he think that it is not so important for him more than his wife, means Della is more important than that watch. So he went to that one shop and he sell that watch. वो एक दुकान में जाता है और उस वॉच को वो सेल कर देता है. जैसे ही वो अकेले जा रहा था रास्ते में, सोचते सोचते वो क्या गिफ्ट दे, तो एक ब्यूटीफुल कोम के बारे में वो सोचता है, और वो एक ब्रोच की तरह होता है, और उसको वो सोचता है कि डेला का इतना सुंदर हेयर है गोल्डन कलर का, तो वो उसमें लगाएगी तो वो ज़्यादा सुंदर लगेगा. तो वो ऐसे ही सोचते सोचते अचानक उसके पॉकेट में उसका हाथ जाता है, तो उसे याद आता है उसके पास एक वॉच है जिसका स्ट्राइप टूट गया है, तो अब उसका कोई काम नहीं है, और वो वॉच उतना भी इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना डेला उसके लिए है. तो वो एक शॉप में जाता है और वो उस वॉच को सेल कर देता है, एंड और उसके बदले उसको वो मनी मिल जाता है, और ही वॉज थिंकिंग दैट दिस मनी इज़ इनफ टू बाय दैट कोम. इधर डेला भी यही सोचती है कि दैट मनी इज़ इनफ टू बाय दैट प्लैटिनम रिस्ट. तो दोनों एक दूसरे को खुश करने के लिए दोनों एक दूसरे की पसंद की चीज़ें लेते हैं, और जब क्रिसमस आता है दूसरे दिन जब एक दूसरे को विश करते हैं, तो जिमी बोलता है कि तुमने अपने हेयर को ऐसे ढक के क्यों रखा है, गोल्डन हेयर इतनी सुंदर तुम्हारे गोल्डन हेयर है, उसको तुमने ढक के क्यों रखा है, उसको खोल दो ताकि मैं ये कोम उसमें लगा सकूं.
Then Della said that first I will give you a surprise that please stretch your hand. अपने हाथ को फैलाओ और वो वॉच मुझे दो ताकि मैं उसमें वो रिस्ट लगा के तुम्हारे हाथ में बांध सकूं. तब जिमी वो बोलता है, उसको एक्सक्यूज़ देता है कि सॉरी, तुम्हारे गिफ्ट के लिए, तुम्हारे इस कोम के लिए मैंने उस वॉच को बेच दिया, क्योंकि वो वॉच इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि तुम मेरे लिए हो. तो डेला भी उससे यही कहती है कि सॉरी, एक्सक्यूज़ मी, मैंने भी अपनी हेयर कट करवा ली है, क्योंकि मेरे हेयर इतने भी इम्पोर्टेंट नहीं है जितने तुम हो मेरे लिए, इसलिए मैंने उस हेयर को बेच के ये प्लैटिनम रिस्ट लिया है. तो दोनों एक दूसरे को ये गिफ्ट देते हुए एक दूसरे की स्पेशल चीज़ को सैक्रिफाइस करते हैं. मतलब इस स्टोरी से हमें ये पता चल रहा है कि हम अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जिसे हम बहुत प्यार करते हैं, जिसके लिए हम बहुत केयर करते हैं, उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं. जैसे डेला ने अपने हस्बैंड के लिए इतना चिंता किया और उसने अपने हेयर कट करवा लिए ताकि वो इस रिस्ट को खरीद सके जो उस वॉच में लगे और वो वॉच वो उसका हस्बैंड पहन सके. और जिमी को ये लगा कि वो वॉच उसके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके वाइफ उसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसके लाइफ में. तो वो वॉच उसने बेच दिया ताकि वो उस कोम को खरीद सके जो वो अपनी वाइफ के गोल्डन हेयर में लगा सके. तो इससे ये पता चल रहा है कि हम अगर किसी से अगर हम अपने फैमिली में किसी से बहुत प्यार करते हैं तो उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं. और यही डेडिकेशन होना चाहिए कि हम अपनी फैमिलीज़ के प्रति ज़्यादा झुकाव होना चाहिए, ज़्यादा प्यार होना चाहिए, ताकि हम जब भी अपनी मुसीबत में होते हैं तो हमें अपनी फैमिली ही सबसे पहले सपोर्ट करती है. हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन हमें सपोर्ट करते हैं. सबसे पहले तो हमारे पेरेंट्स हमें सपोर्ट करते हैं, हमारे मदर एंड फादर हमें हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं, हमें हर चीज़ में गाइड करते हैं और वो हमारे लिए कितनी सारी सेक्रीफाइसेस करते हैं, है ना. आपको छोटी से छोटी चीज़ें ज़रूरत होती है तो आप बस बोलते हो, लेकिन आपको ये नहीं पता रहता है कि वही चीज़ लाने में आपके पेरेंट्स ने कितनी सेक्रीफाइसेस की हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप मार्केट जाते हो अपने मदर के साथ और मदर कुछ और सामान खरीदने जाती हैं और शायद वो अपने लिए कुछ सामान खरीदने जा रही हो और आपको किसी शॉप में एक ड्रेस बहुत अच्छा लग गया एंड देन यू आर्ग्यू विद then you tell her that I want that dress. You start forcing her that please purchase that dress for me. And after that, after seeing your face, आपके चेहरे को देख के, आपके मतलब कि उस इच्छा को देख के आपकी मदर अपना सामान भूल के आपके लिए वो ड्रेस खरीद लेती है. मतलब वो अपनी जो ज़रूरतें चीज़ें होती है या फिर वो अपनी चीज़ के लिए गई होगी, लेकिन क्योंकि आपको वो ड्रेस अच्छा लग गया है तो उसने आपको वो ड्रेस खरीद के दी, ये सोच के कि अगले महीने चलो मैं वो चीज़ ले लूँगी. तो ये सैक्रिफाइस आपकी मदर हमेशा करती रहती है कि अगर आपको कोई ज़रूरत होती है कोई चीज़ों की तो पहले वो आपकी ज़रूरत को देखती है, बाद में अपने ज़रूरत को पूरा करती है. पेरेंट्स में फादर भी बहुत सैक्रिफाइस करते हैं. आपको कोई भी चीज़ ज़रूरत होती है तो आप जल्दी से अपने पापा के पास जाते हैं और आप अपने पापा को बोलते हैं कि मुझे ये चीज़ ज़रूरत है. भले आप ये नहीं सोचते हैं कि पता नहीं पापा के पास अभी पैसा होगा कि नहीं होगा, आप ये चीज़ नहीं सोचते हैं, बस अपनी फरमाइश सामने रख देते हैं और पापा यही बोलते हैं कि ठीक है बेटा, हम ला देंगे. फिर वो कैसे लाते हैं, किस तरह लाते हैं, ये आपको नहीं पता रहता है. तो उसके पीछे फादर की बहुत सेक्रीफाइस होती है, तब जाके आपके पास वो सारा चीज़ आता है. आप हर इतने बड़े स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, इसके पीछे भी उनके कितनी सेक्रीफाइसेस हैं. अभी लॉकडाउन हो गया था तो उन्होंने कैसे कैसे आपकी फ़ीस दी होंगी, आपकी बुक्स एंड कॉपीज़ ली होंगी, आपके ड्रेसेस ले होंगे. तो ये सब सैक्रिफाइस वो कैसे करते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी होता है. अगर आप ये जान लेंगे तो आप भी अपने लाइफ में ज़िम्मेदार बनेंगे. You should be responsible in your life, that you will know that how much sacrifice your parents do to fulfill your needs. आपके नीड्स को पूरा करने के लिए आपके पेरेंट्स
बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करते हैं, और इसकी वैल्यू आपकी होनी चाहिए। जैसे इस स्टोरी में दोनों की एक दूसरे की वैल्यू पता थी, दोनों को पता था कि दोनों अपनी चीज़ से बहुत प्यार करते थे। डेला को अपने हेयर से बहुत प्यार था। ये एक नॉवल की स्टोरी है बच्चा। ये स्टोरी ऐसा था कि उसको अपने हेयर से बहुत प्यार था डेला को, और जिमी को अपने वॉच से बहुत प्यार था। लेकिन क्योंकि क्रिसमस का टाइम था और उनके पास, क्योंकि इनकी फाइनेंशियल हालत इतनी अच्छी नहीं थी, उनको रोज़ के लिए सोचना पड़ता था और रोज़ के खाने के लिए सोचना पड़ता था। तो वो यही सोच के बहुत वो हो गए थे कि हम एक दूसरे को गिफ्ट कैसे देंगे। तो उन्होंने अपनी सबसे कीमती चीज़ सेल की और उस पैसे से उन्होंने एक दूसरे के लिए गिफ्ट खरीदा। तो लाइफ में ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं बेटा कि पेरेंट्स बहुत सारी चीज़ें सैक्रिफाइस करते हैं आपके नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए। तो उनकी ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, और हमेशा होनी चाहिए। फैमिलीज़ की वैल्यू बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि फैमिली एक ऐसी जगह है जहाँ हम हर चीज़ शेयर करते हैं और हमें हर तरह की सुविधा मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस है 3। व्हाट आर द क्वालिटीज दैट यू हैव नोटिस इन दिस कपल? व्हाट टाइटल वुड यू गिव दिस स्टोरी? इफ यू वेर इन द प्लेस ऑफ डेला, हाउ वुड यू हैव रिएक्टेड टू दिस सिचुएशन? ये 3 क्वेश्चन आपको करना है। You have to solve these 3 questions because it is related to the story. मैंने आपको स्टोरी समझा दिया है, अब आपका है कि आप इस 3 क्वेश्चंस को अच्छे से समझिए और स्टोरी को फिर से पढ़िए और आप क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। ये 3 क्वेश्चन आपको करना है, आपको समझ के, चैप्टर को रीड करके। माई यूनिकनेस, हर इंसान यूनिक होता है। क्यों? क्योंकि अगर एक तरह के इंसान होंगे तो दुनिया ही अलग हो जाएगी, इसीलिए यूनिकनेस होना चाहिए। हर एक इंसान एक यूनिक पर्सन है, मतलब हर एक इंसान में अलग क्वालिटीज़ है, एक तरह की क्वालिटी किसी में नहीं होती है। कोई किसी में अच्छा होता है तो कोई किसी में अच्छा होता है। ऐसा तो नहीं है कि सभी क्रिकेटर्स हैं, पूरी दुनिया में सभी क्रिकेटर्स हैं, या पूरी दुनिया में सभी फुटबॉलर्स हैं, या सभी ब्रिलियंट है, ऐसा तो नहीं है ना। कुछ क्रिकेटर्स हैं, कुछ फुटबॉलर्स हैं, कुछ बहुत उनकी IQ बहुत हाई है, किसी की थोड़ी लो है, किसी की मीडियम है। कोई अच्छा स्पीच दे सकता है तो कोई अच्छा गा सकता है, तो कोई अच्छा डांस कर सकता है। तो सबकी अपनी एक पहचान होती है, हर कोई हर काम नहीं कर सकता है। बिहेवियर सबका एक जैसा नहीं होता है, कोई बहुत हार्शली बोलता है, कोई बहुत प्यार से बोलता है, कोई मिला जुला के बोलता है कि कभी जब भी उसको गुस्सा आता है तब वो हार्श बोलता है, अचानक से उसका गुस्सा जब ठंडा हो जाता है तो वो प्यार से बोलता है। तो यूनिकनेस सब में है। ईच वन ऑफ हैज़ यूनिक बिहेवियर पैटर्न दैट मेक्स हर लवेबल एंड केपेबल। पैटर्न मतलब जरिया, किस तरह का होना चाहिए। एक तरह का पैटर्न होता है, जैसे पैटर्न का ड्रेस का पैटर्न, ड्रेस के डिज़ाइन का पैटर्न जैसे होता है, ठीक है, अलग अलग पैटर्न्स होते हैं। तो वैसे ही बिहेवियर्स के भी पैटर्न्स होते हैं। किसी का सॉफ्ट होता है, किसी का हार्श होता है, किसी का रूड होता है, तो अलग अलग पैटर्न्स होते हैं। I am what my thoughts, words and actions are. My words, actions and behaviors patterns give me my outer mold or having. हमारे बिहेवियर से हमारे अंदर का नहीं बाहर का पता चलता है ना। हमारे बोलने के तरीके से, हमारे बिहेवियर से, हमारे बिहेवियर के पैटर्न से हमारे आउटर लुक के बारे में पता चलता है। They also reveal my being or inner core, what I am really am. I really am. लेकिन इस बिहेवियर से हमारे अंदर का, इनर की भी क्वालिटीज़ पता चलती है कि कैसे हैं हम। हमारे इनर की भी पता चलती है कि हम कैसे हैं। अगर आप किसी से रूड से बात कीजिएगा तो आपका इमेज कैसा रहेगा? अरे वो बहुत ख़राब से बोलती है।
लेकिन अगर आप बहुत सॉफ्ट से आराम से किसी से बात कीजिएगा, हर चीज़ में उसकी मदद कीजिएगा, तो बोलेगा अरे बहुत हेल्पफुल है, बहुत अच्छे से बोलती है। लेकिन आप हेल्पफुल हैं लेकिन आप कभी कभी रूड हो जाते हो, तो आपका बिहेवियर कैसा पता चला? अरे बहुत रूडली बात करती है लेकिन हेल्प भी करती है। तो अलग अलग पैटर्न होता है, तो आपके उसके इनर और आउटर दोनों लुक के बारे में आपका पता चलता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन हैज राइटली सेड, व्हेन यू आर गुड टू अदर्स यू आर बेस्ट टू योरसेल्फ। जब आप दूसरों के लिए अच्छे होते हैं तो अपने लिए सबसे अच्छे होते हैं। ठीक है, जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आप अपने आप को सबसे अच्छा बना लेते हैं, क्योंकि आपने किसी की मदद की। हर कोई मदद करना चाहता है, लेकिन अगर कोई दिल से मदद करे तो वो ज़्यादा महत्व रहता है। आपने किसी को बोला ठीक है कर देंगे, ऐसे नहीं। अगर कोई दिल से कहे हाँ हाँ बिल्कुल क्यों नहीं, तो इससे सामने वाले की जो फीलिंग होती है वो और अच्छी हो जाती है कि अरे वाह, मैंने एक बार कहा, उसने इतने अच्छे से मुझे बात की। और आप किसी से पूछोगे अरे मेरा ये काम कर दो, हमेशा तो बोलते रहते हो, क्या काम है कि हमेशा यही काम करते रहते हो, तो ये बिहेवियर होगा तो वो दूसरी बार आपको बोलने कभी नहीं आएगा। लेकिन अगर वो आपके पास मदद मांगने आया, हेल्प मांगने आया और आपने बोला ठीक है मैं कर दूंगा, तो वो दोबारा आएगा आपके पास मदद मांगने कि अरे ये तो हमेशा मेरी मदद कर देता है। तो इसीलिए उन्होंने कहा है, कौन कहा है? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये लाइन कही है कि व्हेन यू आर गुड टू अदर्स, जब आप दूसरों के लिए अच्छे होते हो तो यू आर बेस्ट टू योरसेल्फ, तो आप अपने लिए सबसे अच्छे हो। इन द लास्ट सेशन यू हैव डिस्कवर्ड योर सेल्फ इमेज। आपके लास्ट चैप्टर में आपने अपने आप को डेवलप किया है, आपका सेल्फ इमेज डेवलप किया कि आप कैसे हो। आप अपने इनर वॉइस को सुन के अब अपने आप को जाने हो। वेरी ऑफन वी फॉरगेट दैट लाइफ इज एन इको, वी रिसीव वॉट वी गिव। हम भूल जाते हैं कि लाइफ एक इको है, रिवर्स आता है। जैसा आप करोगे वैसा ही आपको दोबारा वापस मिलेगा। अगर आप किसी से रूडली बात करते हो तो आपको भी सब रूडली ही बिहेव करेंगे आपके साथ, आपसे कोई प्यार से बात नहीं करेगा। द स्टोरी ऑफ कप संबा वुड enlighten us with little more। एक स्टोरी है इसके बाद जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, कि इसमें देखा जाएगा कि कैसे आप जैसा करते हो आपको वैसा ही रिवर्स में आता है। हम ये भूल जाते हैं कि लाइफ एक इको है और जैसा हम करेंगे वैसा ही हम भोगेंगे। ठीक है, सो टुडे वी स्टॉप हियर। Girls, please go through the video. If you're having any problem, then you can comment on the comment box. Okay, so stay home, stay safe. Thank you.